हेलो दोस्तों, अगर डिक्टेशंस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, बेल के साथ दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली डिक्टेशंस टाइम टू टाइम समय पे मिल सकें। थैंक यू। Plaintiff appellant is in the regular second appeal against the judgments passed by the courts below, dismissing the suit filed by him for declaration claiming that he and defendant number 7 in bracket his brother bracket out are owners of the property on the basis of a testament dated 12/1/1991 executed by their mother, late Srimati Daulati Devi. Full stop. Defendants number 1 to 6 are sisters of the plaintiff. Full stop. Para. In the considered opinion of this court, comma, the following substantial questions of law arises for consideration, colon para. First, whether it was incumbent on the plaintiff who was claiming property on the basis of a testament to disclose in the plaint that a lease deed was also executed on the same day by his mother, failing it would be treated as a suspicious circumstance affecting the validity of the testament, question mark para. Second, whether a testament executed can be ignored by the courts on the basis of suspicious circumstances which does not have substance, question mark para. Some facts are required to be noticed. Srimati Daulati Devi, comma, widow of Ajmer Singh, was having 2 sons and 6 daughters, full stop. Srimati Sharda, one of the daughter, had predeceased Srimati Daulati Devi, full stop. All the 5 daughters had been married and settled in their respective families, in bracket, families in which they were married, bracket out, full stop. Srimati Daulati Devi is alleged to have executed a testament dated 12/1/1991 bequeathing her entire property equally in favor of her 2 sons, namely Varinder Singh and Mohinder Singh, full stop. In the testament, comma, she has referred to all the 5 daughters and specifically mentioned that all the 5 daughters are married, full stop. The testament has been proved through examination of Narinder Singh, comma, attesting witness as PW3 and Balwant Singh, comma, scribe as PW2, full stop. Both have supported the case of the plaintiff, full stop para. Learned First Appellate Court, while recording that the will is surrounded by suspicious circumstances, has noticed the following circumstances, colon para. First, on the same day, comma, Srimati Daulati Devi, the testator who had also executed a lease deed in favor of her son Varinder Singh, plaintiff, but the same has not been disclosed in the plaint, full stop para. Second, the lease deed has not been produced on the file of this suit, full stop para. Third, once it is the case of Varinder Singh that lease deed was executed in the Tehsil complex, comma, why the will was not got executed there and then, full stop para. The evidence on record suggests that the
plaintiff, comma, one of the beneficiary was present at the time of execution of the testament, full stop. There are signatures of the plaintiff against entry number 25 in the register of the scribe, and therefore presence of the plaintiff, one of the beneficiary, is provided, full stop, para. Fifth, when the proceedings for mutation on the basis of will started, comma, the attesting witness did not support the testament, full stop, para. There are serious contradictions in the statement of the scribe and the attesting witness, full stop, over. तो फ्रेंड्स ये हो गया है 94 के लमसम, ये भी है, ठीक है, और 90 प्लस ही है। तो क्या कहते हैं, इसमें नाम आए हुए हैं वरिंदर। वरिंदर कैसे बनेगा, वी बनाइए अबव द लाइन और आर की डबलिंग, एन का हुक, वरिंदर। और मोहिंदर तुम बता चुके हैं, एम डाउनवर्ड, एच की डबलिंग, एन का हुक, मोहिंदर। और दौलती देवी पूरा बनेगा डी एल और टी, और टी में ई की वॉवल, दलती, दलती देवी, देवी हमने बता चुके हैं हम, ऑन द लाइन डी, वी का हुक और ई की वॉवल आफ्टर में, देवी डबल डैश, ठीक है, बीच में लगेगा पेन की वॉवल, आफ्टर में देव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया है दौलती देवी। अजमेर सिंह बनेगा, अजमेर सिंह बनेगा, या तो जे बनाओ और उसी में मोर जोड़ दो, एम को थोड़ा ऊपर ले आके बनाओगे तो आर का हुक निकल आएगा, अजमेर सिंह हो जाएगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अज जे एम डाउनवर्ड आर, अजमेर सिंह तो आप सबको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। शारदा बनेगा एस एच आर अबव द लाइन और डी पूरा बनेगा, और डी में दैट की वॉवल आफ्टर में द, शारदा हो जाएगा, ठीक है। वॉवल तभी लगाइएगा, अगर आप वॉवल में कंफर्टेबल नहीं है तो बिना वॉवल के भी कर लीजिएगा, किसी किसी की आदत होती है ना वॉवल नहीं लगाने की, तो कोई मैंडेटरी नहीं है, वॉवल लगाइए, वॉवल लगाने से आप थोड़ा पढ़ने में मदद मिल जाएगी। नरिंदर कैसे बनेगा, एन में आर का हुक और एन की डबलिंग और फिर लास्ट में एन का हुक, ठीक है, क्योंकि नरेंद्र है तो नरिंदर कैसे आएगा, ये तो नरेंद्र हो गया, ठीक है, इन अवर ओपिनियन को डबलिंग कर दीजिए तो वो नरेंद्र हो गया। अब रिंदर के लिए लास्ट में डबलिंग के बाद लास्ट में थर्ड प्लेस पे ई की वॉवल, ताकि आपको पता चले कि ये इंदर है, ठीक है, इंदर। अब चाहे अबव द लाइन लगा दीजिए, ओ सॉरी बिफोर लगा दीजिए या आफ्टर में लगा दीजिए, ठीक है, बिफोर भी लगा देंगे तो भी चल जाएगा, नरिंदर हो जाएगा, ताकि आपको याद रहे कि भैया इंदर से पहले, मतलब दर से अंडर से पहले ई की वॉवल है, ठीक है। और बलवंत कैसे बनेगा, बलवंत बी अपवर्ड एल और वे का स्ट्रोक, और वे का स्ट्रोक हाफ रहेगा, एन का हुक रहेगा उसमें, ठीक है, बलवंत। और बी में एल का हुक भी लगा सकते हैं बलवंत और छोटा करना हो तो ये बलवंत हो गए और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये थे आपका डिक्टेशन, और क्या कहते हैं, थैंक यू सो मच, आपके डिक्टेशन आपको बहुत अच्छा लगा और वर्ड मिस नहीं होते, बहुत अच्छा लगता है, आपकी मिस्टेक्स देख के बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है सुनकर कि 11 मिस्टेक, 8 मिस्टेक, 2 मिस्टेक, 5 मिस्टेक, 4 मिस्टेक वाले बंदे हैं। और आप लोग को सिलेक्शन ज़रूर लेना है इस बार तो बच के जाना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे ईजी एग्ज़ाम, अगर हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे इसलिए, क्योंकि किसी ने अगर एग्जामिनर ने हमारी वीडियो देख ली या सुन ली तो फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इसलिए हम कुछ कमिटमेंट अभी नहीं करेंगे, कुछ कमेंट भी नहीं करेंगे, हम सब एग्ज़ाम के बाद करेंगे। आप लोग बताइएगा कैसा एग्ज़ाम गया, क्या गया, उसके बाद ही हम कुछ बोलने वाले हैं, उसके पहले नहीं बोलेंगे, क्योंकि बोलना कभी कभी भारी पड़ जाता है, ठीक है। तो डाउट आपके क्लियर हो गए, बहुत अच्छी बात है, हम कोशिश करते हैं कि सारे डाउट आपके क्लियर हो, जल्दबाजी में कोई मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी। और पोस्ट वाले कॉलम में पोस्ट नहीं लिखा और मैंने पोस्ट सब जगह लगा दिया, ये गलत किया आपने, यही शायद किसी एग्ज़ाम की टेबल में भी किसी ने किया था, रुपीज़ के कॉलम में सब ने रुपीज़ डाल दिया, बहुत से लोगों ने रुपीज़ करके डाल दिया, वो रुपीज़ नहीं डालना था, ठीक है। देखिए, पहली चीज़ तो हम आपको ये बता दें, जितनी भी हमने अभी जो भी टेबल कल परसों में डाली है, थोड़ी टफ टेबल है, तो टफ एग्ज़ाम में नहीं आएगा, इतना आप जान लीजिए। इसको ग्लूकोज में मिला के रूह अफ़ज़ा तरीके पी लीजिए, बता रहे हैं टफ नहीं आएगा, आएगा एकदम लाइट मोड, ठीक है। बस आपका सेंस उस समय, प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल होना चाहिए, आपसे कोई गलती ना होने पाए, सब कुछ आराम से पढ़ कर करेंगे तो चुटकी में पेपर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
4 मिनट से ज़्यादा पेपर सॉल्व करने में सीपीटी का लगता नहीं है, 4 मैक्सिमम 4.5 मिनट बस, ठीक है। और उसके बाद बाकी का टाइम तो आपको केवल चेक करना है, 50 बार चेक कर लेंगे आप तो भी आप एकदम मतलब इतना टाइम आपको मिल जाएगा। तो कुल मिला कहने का मतलब ये है, नॉलेज के लिए वीडियो देखिए, नॉलेज अपनी बढ़ाइए, थोड़ा ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, ठीक है। जो भी हम वीडियोस डालते हैं, जो भी वीडियोस पड़ी हुई हैं उनको अच्छे से लगा लीजिए, उनको रिवीजन उनका मार लीजिए, पुराना जाके फिर से वीडियोस देख लीजिए, पीडीएफ को एक बार लगा लीजिए, और भी यूट्यूब चैनल से पीडीएफ्स लीजिए, उनको तैयार कीजिए, उनको एकदम घोंट के पी लीजिए, ठीक है। लेकिन जो एग्ज़ाम आएगा वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही ईजी लेवल का आएगा। बहुत ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है, ना ही दौड़ने की ज़रूरत है, कुछ बेसिक पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए। सोच समझ के अगर आप दिमाग को स्थिर रख कर अगर आप देंगे एग्ज़ाम, तो नंबर हाथ से जाने नहीं वाले हैं। 4 नंबर ही सिर्फ पासिंग मार्क्स इस बार है, 6 भी नहीं है। तो 4, केवल 2 क्वेश्चंस भी आपने सही कर लिए तो 4 आपके आ जाएंगे। लेकिन आपको ज़्यादा क्वेश्चंस तैयार करने हैं। ये जितनी भी वीडियो डाल के हम मेहनत कर रहे हैं, ये केवल 4 या पासिंग मार्क्स 6 के लिए नहीं होता है, कम से कम 8 नंबर के लिए ये टेबल्स रहती हैं, और 10 नंबर भी आ सकते हैं। इसलिए परेशान बिल्कुल मत होइएगा, आराम से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा, कमेंट्स बताते जाइएगा, जो कुछ देना हो लेना हो हम सब करेंगे। और उसके बाद मिलते हैं अगले डिक्टेशन में। थैंक यू सो मच।